بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں محمد جاوید قادری، آپ کا میزبان، اور پروگرام کراچی پوچھتا میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، میں اس وقت موجود ہوں مہران ٹاؤن میں۔ PS 96 کے کینڈیڈیٹ ہیں جناب علی اکبر گجر صاحب، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے، اور ان کے میں الیکشن آفس میں موجود ہوں۔ ناظرین کرام، آئیے یہاں پہ جو ایکٹیویٹی الیکشن کی چل رہی ہے آپ کی ان کے جو عہدیداران ہیں ان سے گفتگو کراتے ہیں۔ جی ہم الیکشن آفس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کہ مہران ٹاؤن میں واقع ہے، یہاں پہ میں موجود ہوں ناظرین کرام، اور علی عاشق گجر صاحب جو کہ ڈسٹرکٹ کرنگی کے صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان سے آپ کی گفتگو کراتے ہیں۔ جی السلام علیکم جناب محترم عاشق علی گجر صاحب۔ وعلیکم السلام جی سر کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ سر بڑی گہما گہمی ہے الیکشن کی، اور کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس الیکشن میں آپ؟ اس میں ایسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کی بھرپور تیاری ہے جی، اور انشاءاللہ مسلم لیگ نون PS 96 سے جیتے گی۔ اور میں ابھی تقریباً یہ 2-1.5 مہینے سے یہ وزٹ کر رہا ہوں تقریباً PS 96 کا زیادہ تر۔ PS 96 کی جو حالت دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ باہر روڈوں کی حالت دیکھ، یہ تھوڑی سی بارش ہوئی ہے، 15 سال جن لوگوں کی حکومت رہی ان کی کارکردگی سامنے آ گئی ہے۔ بالکل، یہ تو کھل کے سامنے آ گئی ہے اور دھل کے سامنے آ گئی ہے، یعنی کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ روڈ جو ہیں ان میں پانی سیوریج کا سسٹم بالکل تباہ و برباد ہوا ہے، اور اس کے علاوہ پانی کا سسٹم نہیں ہے، گیس کا سسٹم نہیں ہے، بجلی کا سسٹم نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کراچی سے سیٹیں جیتے گی، اور مسلم لیگ کا جو ویژن ہے، جو ان کا ایک منشور ہے کہ جہاں سے بھی پاکستان مسلم لیگ نون کینڈیڈیٹ کامیاب ہوں گے، انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون جس طرح لاہور پنجاب میں مسلم لیگ نون نے کام کیا ہے، اسی طرح انشاءاللہ کرپشن سے پاک کراچی کو ہم بنائیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ کراچی کو ایک لاہور کی طرز کا شہر بنائے گی۔ یہ جو بنیادی مسائل ہیں پانی کے، سیوریج کے، یہ روڈوں کے، تو میں روڈوں کی صورتحال دیکھ کے تو بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ یہ ہمارا پچھلی گورنمنٹ سے بھی، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ 15 سال سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے، جی بدستور تو اس سے پہلے بھی نہیں کی رہی ہے، 30 سال سے یہ سسٹم ان کا اس وقت تو ان کا میئر بھی ہے اور ڈپٹی میئر بھی ہے، لیکن کارکردگی اور کام آپ کے سامنے۔ لیکن کراچی کا صورتحال آپ نے دیکھ لی ہے، بارش ہلکی سی بارش ہوئی، اس میں جو آپ نے پوزیشن چیک کر لی کہ کیا حالت ہو گئی ہے۔ لیکن سر یہ دعوے دار تو کراچی کے سارے ہیں، لیکن کراچی کو میں سمجھتا ہوں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، کوئی والی وارث تو کوئی ہمیں نظر نہیں آتا ہے عملی طور۔ اگر کراچی والوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا اور کامیاب کروایا، ہمارے مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ ہے PS 95 سے رانا احسان صاحب ہیں، جی PS 96 سے علی اکبر گجر صاحب ہیں، PS 91 سے ناصر الدین محمود صاحب ہیں، اور جو ہمارے NA کے جو NA کے کینڈیڈیٹ سلیم زیاد صاحب ہیں، صاحب جی سینئر صاحب جی، اور زین انصاری صاحب ہیں جو NA 233 سے، اگر انہوں نے ہماری ڈسٹرکٹ کرنگی کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ کراچی میں جو ہمارے مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ان کو ووٹ دیا اور ان کو جتوایا، اور انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو کراچی کو ہم انشاءاللہ لاہور کی طرز کا ایک شہر بنائیں گے، اور آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ انشاءاللہ روڈوں کے جو حالت ہے، وہ روڈ ایسے ہی ہوں گے جیسے لاہور کے روڈ ہیں، ایسے ہی ہوں گے جیسے پنجاب میں فیصل آباد کے روڈ ہیں، پنڈی کے روڈ ہیں۔ مطلب آپ جب موٹر وے پہ چڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے سکھر موٹر وے پہ چڑھتے ہیں، تو آپ آل اوور پنجاب میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلا، آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک میں آ گئے ہیں۔ تو یہ کراچی کو جنہوں نے 30 سال سے اون نہیں کیا، ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک موقع دیں، انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ اون کرے گی، اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ کراچی کو ایک جس کو کہتے ہیں نا نیا شہر بنا کے آپ کو بتائے گی کہ تعمیر نیا شہر تعمیر، بالکل ایسی تعمیر کے ویژن بھی کہتے ہیں کہ نون لیگ کا ایک ویژن بھی ہے کہ ہم جو ہے نا تعمیراتی کام جی ہمارا منشور ہے کرپشن سے پاک۔ سر یہ صرف باتوں کی حد تک تو نہیں رہے گا، عملی طور پہ بھی کچھ عوام کے لیے ریلیف ہوگا۔ عوام کو تو اس جو آپ کا حلقہ ہے مہران ٹاؤن، یہاں تو پانی پینے کا صاف پانی تک نہیں عوام کے پاس ہے، یہ آپ کو پتہ ہے ٹینکر ڈلواتے ہیں لوگوں، سیوریج کا آپ کے سامنے معاملات ہیں۔ جی آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں اگر ٹینکر سے پانی پورا کیا جا سکتا ہے، آیا کہ آپ کو واٹر سپلائی سے پانی مہیا نہیں کیا جا سکتا؟ بالکل سر، جو پوش علاقے ہیں وہاں سے تو یہ ایک مافیا ہے جی، یہ ایک مافیا ہے، ٹینکر مافیا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کے گھر میں پانی پہنچے۔ یہ K4 کا جو منصوبہ ہے، اس کی جو 25 کروڑ کی، اس 25 ارب کی جو پیمنٹ بنتی تھی، ہم نے آدھے 12.5 ارب ہم نے پیمنٹ کر دی تھی، لیکن یہ صوبائی گورنمنٹ کی نااہلی ہے نا، انہوں نے اس کو منصوبے کو تعمیر نہیں کیا،
कंप्लीट नहीं किया, लेकिन अगर आगे इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट आएगी, जो प्रोग्राम रह गए इंशाल्लाह उसको हम पाए तकमील पे पहुँचाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोग कुछ मैसेज देना चाहते हैं आवाम को आप? मैं आवाम से यही कहूँगा कि आप 8 फरवरी 2024 को निकलें, अपनी माओं को, बहनों को, बेटियों को, आप खुद अपने बुज़ुर्गों को साथ लेके पाकिस्तान मुस्लिम लीग को वोट दें, उनको कामयाब करवाएं, ताकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग इक़्तिदार में आए और कराची की सूरत हाल पे जो सूरत हाल है उसमें चेंज आए, उसमें बेहतरी आए। जो आपके बुनियादी मसाइल हैं, पानी, सीवरेज, रोड, स्ट्रीट लाइट्स, इन सब का जो मसले मसाइल हैं, यानी लोगों के दुखों का मदावा हो इंशाल्लाह आपके वोट से, इंशाल्लाह आवाम के वोट से, आवाम के वोट से इंशाल्लाह हम जीत के आएंगे। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें जो हम वादा कर रहे हैं इंशाल्लाह इनको ये अली आशिक गुज्जर साहब, ये सब रिकॉर्ड पे हैं ये चीज़ें आपकी। बेशक आजकल आप आपको रिकॉर्ड पता है सोशल मीडिया का दौर है, तो ये सारी चीज़ें आपकी तमाम रिकॉर्ड हो चुकी हैं, क्योंकि लोग आते हैं, दावे करते हैं, बातें करते हैं, उसके बाद हल्के में आते भी नहीं है, लोगों को पूछते आपको भी। शायद पता नहीं है कि पंजाब में हमारी जब भी गवर्नमेंट रही है तो हमने दावे नहीं किए, हमने काम करके दिखाए हैं। जी बिल्कुल, लोगों अगर आप समझते हैं कि हमने दावे किए थे और पूरे नहीं किए, तो ये मिसाल कोई आप मुझे पंजाब की मिसाल ऐसी दिखा दें। नहीं सर, पंजाब में तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, अगर किसी पैमाने से भी चेक करें वहाँ तो काम किया ही गया है। लेकिन लोग जो कराची की आवाम है ना, वो कहती है कि नून लीग कराची के लोगों के लिए काम नहीं करती, क्योंकि इनका इतना यहाँ पे वोट बैंक नहीं है इतना। तो इसके बारे में ज़रा फरमाइएगा। ये मैं कह रहा हूँ कि वोट बैंक तो हमारा बहुत है, लेकिन वोट बैंक पिछले दवार में चोरी होता रहा है। इंशाल्लाह इस दफ़ा कोशिश करेंगे हम इंशाल्लाह हर पोलिंग स्टेशन पे अपने लोगों को बिठाएंगे, ताकि कोई 2 नंबरी ना हो सके और किसी किस्म का धांधली ना हो सके, और भरपूर तरीके से हम पहरा देंगे। जहाँ भी कहीं धांधली करने की किसी ने कोशिश की, उनको भरपूर जवाब देंगे इंशाल्लाह। इस वक्त हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के नायब सदर रावेज़ कुरैशी साहब मौजूद हैं। अब्बासी साहब, जी रावेज़ अब्बासी साहब से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। सलाम, क्या हाल है भाई? खैर जी अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है सर। सर अब्बासी साहब ये फरमाइए कि आपके जो इलाका है यहाँ पे बड़े गंभीर मसाइल हैं इस हलके में ख़ासकर, और बिल्कुल गरीब मज़दूर तबका है, और लोग जो है ना पहले भी अदवार में दूसरे भी जो यहाँ से मुंतखब होते रहे, लेकिन उन्होंने कोई आवाम के दुखों का मदावा नहीं किया। आप क्या ये जो अली अकबर गुज्जर साहब जो कि PS 96 के कैंडिडेट हैं, ये अगर यहाँ से मुंतखब होते हैं, सिंध असेंबली में जाते हैं, तो आवाम के दुखों का मदावा होगा इंशाल्लाह? ये हमारी डिस्ट्रिक्ट कुरंगी की जो टीम है अली आशिक सदर साहब की निगरानी में, इन सब की राय से और इन सब की चाहत से अली अकबर गुज्जर साहब को हमने PS 96 में उतारा है, इसलिए कि हमारे इलाके की मरूमियाँ बहुत ही ज़्यादा हैं। लिहाजा शौक़ तो इलेक्शन का हर कोई रखता है, लेकिन हमारी नज़रों के अंदर अली अकबर गुज्जर ऐसा कैंडिडेट है जो इंशाल्लाह अपनी वादों पे पूरा उतरेगा, और इंशाल्लाह हमारे को उन पे यकीन भी है और अतमाद भी है, और इसलिए हम रात दिन इंशाल्लाह उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो कामयाब भी होंगे। और अहले मरान टाउन की जो मरूमियाँ हैं, ये इंशाल्लाह बहुत ही जल्द अल्लाह ताला ने अली अकबर गुज्जर को कामयाब किया और सलीम ज़िया साहब को कामयाब किया, तो इंशाल्लाह मरान टाउन की जो मरूमियाँ हैं ये बहुत जल्द ख़त्म होगी, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा कारनामा है। उनके बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, बहुत बड़े बड़े मोटरवे, यानी कि पाकिस्तान के अंदर अगर उनकी काम आप हटा दो तो बकाया जो है खंदर ही नज़र आएगा। जो हमारे इलाके की, हमारे सूबा सिंध की गवर्नमेंट है, ये तो आपको भी इल्म है कि अली अकबर गुज्जर साहब तो बाकायदा सिंध के जो है सीनियर नायब सदर भी हैं, वो तंजीमी एतबार से भी बड़े माशाल्लाह से उनका एक इमेज है, पावरफुल हैं। तो क्या आवाम की तरफ से आपको कैसा फीडबैक आ रहा है? इंशाल्लाह हमारे को बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, क्योंकि अली अकबर गुज्जर जानी पहचानी शख्सियत है, और हमेशा ही वो PS 96 के अंदर उन्होंने, जब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिंध के सीनियर नायब सदर हैं, और उनके चाहने वाले PS 96 में बहुत ही ज़्यादा हैं, और लोगों की चाहत थी, इसलिए अली अकबर गुज्जर साहब को हमने यहाँ से इलेक्शन में उतारा, और लोगों से हम डोर टू डोर भी मुलाकात कर रहे हैं, और हमारे को तकरीबन 90% उम्मीद है कि इंशाल्लाह PS 96 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीट है और इंशाल्लाह होगी। जी बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन किराम, ये अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि सीनियर नायब सदर थे। नाज़रीन किराम, इस वक्त हमारे साथ करीम बख्श रिंद साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर हमारे इस तंजीम के रुकन भी हैं और समाजी कारकुन भी हैं, और ये जो हैं बड़ी सपोर्टर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और साबिक काउंसलर भी हैं। जी आइए आपकी बात कराते हैं, जनाब गुफ्तगू कराते हैं करीम बख्श रिंद साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। छाला साईं रिंद साहब खुश है खैरा? माले जैसा तो साईं भले कार चऊं था, भली करे आया चऊं था।
त छा हिते अव्हांखे जेको उर्दू में ॻाल्हायूं छो की असांजा जेका व्यूज़ आहिनि उहो उर्दू में जेको असांजो चैनल आहे त सिंधी मूंखे अचे थी मगर मां तव्हां सां उर्दू में ॻाल्हायां थो साईं। सर ये बताएं करीम बख्श रिंद साहब के आप जो है इस हलके से ही आपका ताल्लुक है? जी, इस हल्के PS 96 से है। PS 96 से आपका ताल्लुक है? जी। तो क्या आप जो एक्टिविटी आवाम में आपको जो आप आवाम में जो जा रहे हैं लोगों से वोट की जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों से दरख्वास्त कर रहे हैं, तो कैसा लोगों का रिस्पांस आ रहा है? माशाल्लाह ज़बरदस्त आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ा हूँ काउंसलर का। अच्छा। तो माशाल्लाह मेरे को 900 से ऊपर वोट मिला था, उस वक्त वार्ड 1 था। आप मुंतखब हो चुके हैं यहाँ पे काउंसलर? हो चुके थे, लेकिन दूसरे दिन रिज़ल्ट चेंज हो गया था। रिजल्ट चेंज हो गया, वजह क्या थी रिजल्ट चेंज होने की? उस वक्त भाई लोग थे, अच्छा, तो इस वजह से जो है ना वो रिज़ल्ट चेंज हो गया। अभी क्या उम्मीद करते हैं इस वक्त ये जो PS 96 का जो बड़ा मलाखड़ा है इसमें अली अकबर गुज्जर साहब जो कि सीनियर नायब सदर हैं सिंध के और कैंडिडेट भी हैं PS 96 के, और इस मैदान में उतरे हैं, और सलीम ज़िया साहब भी NA की सीट से जो हैं वो उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के। तो आपको क्या जो है क्या आपको उम्मीद है कि इनसे इस सीट के हवाले से बताइएगा? जी, अल्लाह का लाख शुक्र है कि जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, लोगों का जो विज़न देख रहे हैं, जी। माशाल्लाह ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह में हमें 100% उम्मीद है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग सीट जीतेगी। और दूसरी जो 15 साल हुकूमत सिंध की, जो यहाँ के मेयर भी गवर्नर भी सारा कुछ यहाँ के इस वक्त मेयर और डिप्टी मेयर तो ऑलरेडी है, चलें ये निगरान सेटअप है, लेकिन मेयर डिप्टी मेयर का तो काम है ना। ये अगर मेरा कैमरामैन दिखाएं तो ये सड़कों का हाल आप देखें इस वक्त नाज़रीन किराम, ये सड़कों का हाल देखें, और ये लोग बड़े परेशान हैं। 2 दिन बारिश को हो चुके हैं लेकिन यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है पूरे शहर की। ये अगर मेरा कैमरामैन यहाँ पर भी मुझे दिखाए तो ये तो इस वक्त बड़े परेशानी का आलम है, और लोग जो है ना इस वक्त जो पार्टियां यहाँ पे जो ऑन करती रही इस शहर कराची को, और वो इस वक्त जो है ना इस वक्त नज़र नहीं आ रही स्क्रीन पे। तो मुस्लिम लीग नून से जो है क्या समझते हैं, आवाम को तवक्कात है? इंशाल्लाह आवाम को तवक्कात भी हैं, इंशाल्लाह सीट भी निकलेगी। मैं बात कर रहा था तो फिर आपने वो बाहर का नज़ारा उन लोगों को दिखाया है, अच्छी बात है। मैं एक चीज़ आपसे सवाल करता हूँ, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो बोल रहा है कि मैं कराची को पानी दूंगा, रोडें दूंगा, सारा कुछ सेवरेज तक दूंगा, हर सहूलत दूंगा। 15 साल पहले कहाँ थे? जो आज इलेक्शन तो पानी तो इस मेरान टाउन में सर ये लोग टैंकर डलवाते हैं, और जी जो आज वो दावे कर रहे हैं, मैं तो एक ये चीज़ देख लो कि मियाँ साहब को एक पार्टी हो के हमारे कैद को बोलें यार मैं भी टैंकर डालता हूँ, आप पानी के लिए करो, वो अवाम के लिए क्या करेगा? जो खुद परचेज करके टैंकर डलवाता हो, खुद आवाम के लिए ये आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, आवाम के लिए वो क्या पानी लाएगा? वो मैं तो ये समझता हूँ पाकिस्तान पीपल पार्टी ने सिंध का बेड़ा गर्क करा है और कुछ नहीं करा। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो यहाँ पे मुंतखब हो के, इनके नुमाइंदे मुंतखब हो के ये अवाम के दुखों का मुदावा करेगी। ये जो परेशान हाल लोग हैं, मज़दूर तबका है यहाँ पे, वो बेचारा उस तनख्वाह में जो है वो उसका बच्चों का राशन नहीं आता है, वो पानी का टैंकर डलवाएगा, बिजली के बिल भरेगा। लोग बड़े मायूस हैं इस वक्त, तमाम पार्टियों से मायूस है। रिंद साहब जी बिल्कुल, आप ये चीज़ देखो कि मुस्लिम लीग की हुकूमत थी तो आपको 65 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता था, 65 रुपये किलो 55 रुपये किलो चीनी मिलती थी, घी 135 रुपये मिलता था, हर चीज़ का रेट कम था। जब से PTI उसमें रेट बढ़ गए, सारा कुछ हुआ। ये भी अल्लाह का लाख शुक्र हम अदा करते हैं। आज हम बैठे हुए हैं, ये नवाज शरीफ की वजह से बैठे हुए हैं। अम्मा ने सुकून दिया तो नवाज शरीफ ने दिया। यानी कराची शहर में जो अमन का जो गहवारा बनाया उसमें नवाज शरीफ साहब का किरदार है, आप कहते हैं? जी, वो मियाँ साहब का ही किरदार है। आज हम जो सुकून से बैठे हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। ये थे हमारे सीनियर रुकन थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेहरान टाउन के। और नाज़रीन किराम, अपने मेज़बान मोहम्मद जावेद कादरी को मेहरान टाउन से PS 96 हल्के से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।